Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on budget proposals and latest amendment in GST. And on this subject or topic, our very own learned elder brother CA Manmohan Khemkaji with us. I welcome you, sir. I also welcome all the attendee on behalf of our study circle. As you know, Manmohan Khemkaji is a very regular to our study circle. There is no need to introduce him, but still my duty to introduce him very briefly. He is a BCom honors from Delhi University, FCA, law graduate, business valuation, certain course from ICI, business valuation, FAFD, CAAT, NCFM, and also did his PGD in Vastu from Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth. He is a visiting faculty for GST and service tax and economics, finance and taxation on various social and corporate platforms. He delivered more than 350 honorary lecture as visiting faculty at various CP studies group, branches of ICI, Regional Council and ICI program and other professional and trade forums. He has been a co-opted member of Indirect Tax Committee of ICI during 11-12. Co-opted member of Information Technology Committee during 10-11, and he is the technical observer in Masters in Business Finance course MBA of ICA for 2 years, technical observer of certificate course on business valuation of ICA for 2 years. He was the member of ICA study group for guidance note on corporate social responsibility CSR in 2013. Member of ICI study group for corporate governance in 2002. He is a founder president of CA Vichar Manch, an NGO for welfare and voice of CAs and other tax and finance professionals. Chairman Indirect Tax Committee of All India Chartered Accountants Society ICAS. General Secretary Bharatiya Vitti Salahkar Samiti. Founder West Delhi Study Circle. Also founder Karol Bagh Western CP Study Circle. President Rotary Club of Delhi Capital 2005-6, President C Apartment Resident Welfare Association during 2005-6, worked for Swachh Bharat Abhiyan among school students. This is the brief profile of our today's speaker. Welcome, sir. I once again welcome you, and over to you, sir. थैंक यू वेरी मच राजेश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर देने के लिए कि बजट प्रपोजल्स पे और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स पे मैं अपने फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ में, फेलो प्रोफेशनल्स के साथ में कुछ बातचीत कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम करेंगे कि मेंबर्स की जो भी क्वेरीज हों उनको एड्रेस करेंगे सेशन के एंड में, और फिर भी अगर कोई पैनल से या अदरवाइज कोई क्वेरीज इंटरमिटेंटली आना चाहें तो वो आती रहें, उनका भी स्वागत रहेगा। और जितना ब्रीफली और जितना डिटेल जैसा मेंबर्स की इच्छा होगी वैसा सेशन को हम लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ बजट प्रपोजल्स के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, कुछ क्रिटिकल इश्यूज जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो गए हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, एंड साथ में कुछ लेटेस्ट केस लॉज के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि मेंबर्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो विद दिस मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। सर प्लीज। So I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes. Clause number 99 to 115 ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं थ्रू फाइनेंस बिल 2022 इन CGST एक्ट। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं क्लोज वाइज क्लोज। सबसे पहली अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है 2020-22 बजट प्रपोजल्स के थ्रू, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है राजेश भाई जी सर, कि 1 जनवरी 2022 से ही
GSTR 2B के अलावा जितना भी क्रेडिट है उसको बड़ा क्लियर कर दिया गया था कि वो अब अवेलेबल नहीं होगा, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अब उसको बैकिंग फोर्स दे दी गई है और GSTR 2B को नए फॉर्म में लेकर के आया जाएगा, नए नए अवतार में। और उसमें कहा गया है कि जितना भी क्रेडिट GSTR 2B में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, केवल उतना ही क्रेडिट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के यूटिलाइजेशन के लिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। और इस एक अमेंडमेंट से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को एंड भी मिलेगा। एक इस प्रोविजन को एक सब्सटेंटिव बेनिफिट मिलेगा, सब्सटेंटिव बैक मिलेगी सब्सटेंशियल प्रोविजन की, बट स्टिल इसके ऊपर जितनी भी डिबेट्स हैं वो अभी भी ऑन रहेंगी, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो अभी भी चालू रहेंगे, क्योंकि इसमें एक एडिशनल ऑनस डाला जा रहा है इस पूरे ही प्रोविजन में कि रिसिपिएंट ये इंश्योर करे कि सप्लायर अपनी रिटर्न्स फाइल करे, अपने टैक्स पे करे, GSTR 1 फाइल करे और GSTR 3B फाइल करे, वो भी टाइमली फाइल करे, इवन इफ वो एक परचेजर बोनाफाइड परचेजर है। बोनाफाइड परचेजर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने सप्लायर को एनफोर्स कर सके कि नहीं आप अपनी रिटर्न्स और अपने कंप्लायंसेस टाइम से फाइल करें। दूसरा, कुछ केसेस में बोगस इनवॉइसेस, बोगस परचेजेस के एलिगेशन के केसेस में तो हम ये समझ भी सकते हैं कि वहां कनाइवेंस है, लेकिन जहां जेन्युइन रीजन से कोई सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, वेदर ड्यू टू सम बिजनेस अर्जेंसीज और बिजनेस हैसल्स और ड्यू टू लिक्विडिटी ऑफ फंड और व्हाट एवर रीजन, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में भी अगर GSTR 2B से रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट ही अवेल कर सकते हैं तो कई सारे बिजनेसेस के लिए बहुत सारा हार्डशिप हो सकती है। जहां तक प्रीवियस डिसीजंस इन सिमिलर केसेस इन अदर रेजिम्स, प्रीवियस रेजिम्स है, वहां पर इस तरीके के प्रोविजंस को यूजुअली कोर्ट्स ने अप्रिशिएट नहीं किया है। ये अभी इस तरीके के प्रोविजंस अभी वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास अभी नहीं पहुंचे हैं, पर मैं समझता हूं कि यस, इस पे कोई ना कोई अच्छी रूलिंग आनी चाहिए। बट विद दिस अब हमारे पास सेक्शन 16(2) में आईटीसी की आईटीसी अवेल करने के लिए 6 कंडीशंस हो गई। इनको सबको ध्यान में रखना चाहिए और हम प्रोफेशनल्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स को अवेयर कराएं कि ये सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद ही आईटीसी मिल पाएगा। और अगर हम उससे एक्सेस लेने की कोशिश करेंगी तो रेड फ्लैग के साथ साथ हमारे को शोकॉज नोटिसेस और अदर प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती है। क्या क्या वो कंडीशंस हैं? अब जो कम्युलेटिव कंडीशन सेक्शन 16(2) में आ जाएंगी, इसके बाद वो है टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट हमारे पास रिसिपिएंट के पास होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट GSTR 1 के माध्यम से या इनवॉइस फर्निशिंग फॉर्म के माध्यम से, फाइलिंग इनवॉइस फाइलिंग के माध्यम से ये अपडेट हो जाना चाहिए। एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या जहां कंपोजिट सप्लाई है वो दोनों रिसीव हो जानी चाहिए। क्रेडिट नोट रिस्ट्रिक्टेड इन GSTR 2B, तो क्रेडिट नोट जो नहीं रिस्ट्रिक्ट हुआ है वो ही ले सकते हैं। टैक्स एक्चुअली पे हो जाना चाहिए सप्लायर के द्वारा भी और रिसिपिएंट के द्वारा भी, और GSTR 3B दोनों की फाइल हो जानी चाहिए। एक्चुअली दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट अपना टैक्स पे कर दें और सप्लायर और रिसिपिएंट अपना 3B फाइल कर दें, तभी एक्चुअल में जो न्यूली इंसर्टेड कंडीशन है BA वो पूरी हो सकती है। तो ये है कि ये इसके थ्रू ही, इसके माध्यम से ही हमें क्रेडिट मिलेगा। जी सर, आगे चलते हैं। जी एक बड़ा अच्छा प्रोविजन, वेलकम प्रोविजन है ये, सेक्शन चार्ज में 16 में चेंज किया है, सब सेक्शन 4 और सेक्शन 16। आईटीसी अवेल करने के लिए टाइमलाइन को एक्सटेंड किया गया है। अभी तक कोई भी आईटीसी किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर से पर्टेनिंग उसको अवेल करने की टाइमलाइन थी सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर की
सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। तो सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल, तो रिटर्न इज द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, और सेक्शन 39 के अंडर जो रिटर्न है वो है हमारी GSTR 3B। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 20th डे ऑफ द अक्टूबर है। तो वो जो ड्यू डेट है वो GSTR की रिटर्न फाइल करने की जो भी ITC अवेल करने की लास्ट डेट है। इसमें एक राजेश जी बड़ा कंफ्यूजन हमेशा से है शुरू से, जी सर। क्योंकि ये ड्यू डेट ऑफ दी सितंबर मंथ है, तो लोगों ने इसको ये समझा, असेसीज ने भी और प्रोफेशनल्स ने भी, कि सितंबर मंथ की रिटर्न अगर डिले भी फाइल करते हैं तब भी ये ITC अवेल हो जाएगा। से सपोज अक्टूबर 20 को फाइल करने के बजाय नवंबर में, दिसंबर में, मार्च में भी फाइल करते हैं तब भी ये मिल जाएगा। मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी लास्ट रिटर्न आपकी 20 अक्टूबर तक फाइल होगी उसमें ये ITC अवेल हो जाना चाहिए। तो अब इस 20 अक्टूबर वाली डेट को बढ़ा करके 30th डे ऑफ नवंबर कर दिया गया है। तो 30th डे ऑफ नवंबर तक आप कर सकते हैं। पहले ये कंटेंशन आती थी कि सितंबर में तो ऑडिट ही पूरा होता है और ऑडिट में जाकर के फाइंडिंग्स निकलती है कि क्या हमारी एरर्स और ओमिशंस रह गई हैं, तो इसके लिए एक बाद में डेट दी जाए हमें। तो अब उन्होंने उस बात को समझते हुए 30th डे ऑफ नवंबर को कर दिया गया है। तो 30th डे ऑफ नवंबर का मतलब है जो भी GSTR 3B 30th डे ऑफ नवंबर से पहले फाइल होगी उसके अंदर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ओमिटेड ITC, जो भी इनवॉइस ओमिटेड ओमिशन में रह गए हैं उनका ITC आप क्लेम कर लीजिए, और उसके बाद में फिर वो ITC लीगली एज पर द बुक क्लेम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ऑफ लॉ इसका क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो बाद में चल के पता चलेगा। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में वेरियस नियम दिए गए। तो उसमें कहा गया था कि अगर कंपोजिशन डीलर है तो वो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न अगर नहीं भरता है तो उसकी कैंसिलेशन या सस्पेंशन किया जा सकता है। और अगर कोई दूसरा रेगुलर असेसी है तो अगर वो कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स की रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसका सस्पेंशन किया जा सकता है और कैंसिलेशन किया जा सकता है। नाउ प्रोविजन हैज बीन चेंज्ड। अब कंपोजिशन डीलर के लिए 3 मंथ्स कर दिया गया है टाइम लिमिट को, और जो रेगुलर डीलर्स हैं, जो रेगुलर असेसीज हैं, उनके लिए एक प्रेस्क्राइब किया जाएगा टाइम लिमिट कि कितने टैक्स पीरियड की रिटर्न अगर वो नहीं फाइल करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वो जो टैक्स पीरियड है 2 महीने या 3 महीने का ही आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कंप्लायंसेस को मेटिकुलसली फॉलो करना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा लॉ बेस होता जा रहा है। और क्योंकि ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ड्रिवन लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका सॉफ्टवेयर के थ्रू है, तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, ऑटोमेटिक डिमांड ऑर्डर्स, ये इसकी महत्ता बढ़ती चली जाएगी। एक्सटेंडेड टाइम फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। सिमिलरली जैसे कि 30 ITC अवेल करने के लिए हमको टाइम लिमिट बढ़ा करके 20 अक्टूबर से 30th नवंबर कर दी गई है, इसी तरीके से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट भी 30th नवंबर तक कर दी गई है। तो जहां जहां भी ड्यू डेट फॉर सितंबर थी इस तरीके के प्रोविजंस में उसको एक्सटेंड करके 30th नवंबर कर दिया गया है। डेबिट नोट इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है किसी भी इनवॉइस से रिलेटेड, लेकिन क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है। क्रेडिट नोट हैज टू बी इशूड बाय सप्लायर ओनली, ये बात हमें अंडरस्टैंड है। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्रेडिट पास ऑन करना रह गया है तो और ऑडिट में आइडेंटिफाई होता है तो उसका क्रेडिट नोट 30th डे ऑफ नवंबर तक हो जाना चाहिए, और GSTR 1 में उसकी अमेंडमेंट 30th डे ऑफ नवंबर तक फाइल हो जानी चाहिए। उसके बाद उसका GS क्रेडिट नोट एक्सेप्टेबल नहीं होगा और फिर दूसरी लीगल रेमेडीज ही जो भी अवेलेबल होंगी उनको लिया जा सकता है, अदरवाइज वो एक सब्सटेंटिव लॉस हो जाएगा।
असेसी के लिए भी और रिसिपिएंट के लिए भी। सेक्शन 37 डील करता है फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स फॉर आउटवर्ड सप्लाईज। अब सेक्शन 37 में अमेंडमेंट ये की गई है कि कंडीशंस के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी प्रेस्क्राइब की जाएंगी कि आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करने के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसकी कम्युनिकेशंस टू कंसर्न रिसिपिएंट्स। पहले हम ये काम सेक्शन 37, 38 एंड 39 के माध्यम से करते थे कि आउटवर्ड सप्लाईज जो भी सप्लायर फर्निश करता था उसको अवेलेबल होती थी रिसिपिएंट को, पहले इनिशियली GSTR 1A के माध्यम से और फिर बाद में 2A के माध्यम से। लेकिन अब उस 2A वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और अब ये 2 वे कम्युनिकेशन जो 2A के माध्यम से था उसको खत्म करके केवल और केवल सिंगल कम्युनिकेशन रह जाएगा GSTR 2B। फर्दर कोई भी रेक्टिफिकेशन आउटवर्ड सप्लाईज में अब हमें करनी है तो उसके लिए भी 30th डे ऑफ नवंबर की टाइमलाइन हो गई। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के GSTR 1 की कोई भी अमेंडमेंट्स हैं वो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 30th डे ऑफ नवंबर तक की जा सकती है। दैट मीन्स उस डेट तक फाइल होने वाली लास्ट GSTR 1 में उसको किया जा सकता है। और एक दूसरा चेंज आया है, अभी हम क्या कर लेते थे कि जुलाई मंथ की GSTR 1 पेंडिंग है पर अगस्त मंथ की GSTR 1 फाइल कर सकते थे। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि GSTR 1 जो है सीक्वेंशियली फाइल होंगी। किसी भी एक प्रीवियस मंथ की GSTR 1 अगर पेंडिंग है तो उसके सक्सीडिंग मंथ की GSTR 1 अब फाइल नहीं की जा सकेगी। सेक्शन 38 इनवर्ट सप्लाईज की रिटर्न्स का सेक्शन था, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। अब इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है और एक ऑटो जनरेटेड सेक्शन स्टेटमेंट हमें फर्निश होगी GSTR 2B के माध्यम से। GSTR 2B से हम सभी लोग परिचित हैं और GSTR 2B में ये बताया जाएगा कि कौन सी इनवर्ट सप्लाईज है जिसके ऊपर की ITC क्लेम किया जा सकता है और कौन सी इनवर्ट सप्लाईज है जिसके ऊपर ITC क्लेम नहीं किया जा सकता, आइदर होली और पार्टली। तो एक पार्टली रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती है और पूरी रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती है। रिस्ट्रिक्शंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी GSTR 2B के माध्यम से कि हाँ जी हम ये GSTR नहीं क्रेडिट नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या क्या है। तो उसका एक प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन है सप्लायर का या रिसिपिएंट का, कि वो प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर फाइल करता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं कुछ। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स है तो ITC अवेल करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। अगर GSTR 1 में फर्निश्ड टैक्स लायबिलिटी GSTR 3B में पे की गई टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, दैट मीन्स GSTR 1 में हमने आउटवर्ड सप्लाईज ज्यादा दिखाई है टैक्सेबल, लेकिन GSTR 3B में कम टैक्स पे किया है और कम टैक्स लायबिलिटी दिखाई है, तो फिर उसमें ITC में रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। ITC अगर हमने 2B में बताई गई परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अवेल कर लिया है किसी मंथ में, तो आगे वाले मंथ्स में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि हम उसके ऊपर ITC अवेल ना किए कर सके। टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट इज इन एक्सेस ऑफ लिमिट अंडर सेक्शन 49(12). जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी एक नियम है कि 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही, मैक्सिमम 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही क्रेडिट लेजर के थ्रू पे की जा सकती है। एटलीस्ट 1% हमें कैश लेजर से पे करना है, उसकी फिर कुछ एक्सेप्शंस है। और ये रिटर्न ये इसको बैकिंग अप सेक्शन में दे दिया, सेक्शन 49 में एक सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सब सेक्शन 12, और उतना ही क्रेडिट जितना की लिमिट में प्रेस्क्राइब होगा हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और छठी रिस्ट्रिक्शंस क्या सरकार लगा सकती है कि सरकार कुछ क्लास ऑफ पर्संस के लिए ये कह सकती है
कि उनको कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा, कितना क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी की सारी कम्युनिकेशन GSTR 2B के माध्यम से अब हमें होंगी, और ये इनवर्ट सप्लाई और ITC एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, परमिसिबल ITC से रिलेटेड केवल एक सिंगल रिटर्न होगी, और अब 2A GSTR 2A को खत्म कर दिया जाएगा। सेक्शन 39 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस थे उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती थी, अब उसको 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया गया। क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए ऑलरेडी 2 ऑप्शन अवेलेबल है टैक्स पे करने की, कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स या तो सेल्फ असेस टैक्स पे कर दें, या फिर एक अमाउंट उनको प्रेस्क्राइब्ड है जैसा उन्होंने चूज किया है उसके बेसिस पे वो रिटर्न टैक्स पे कर दें। तो इसको सेक्शन 39 में ही डाल दिया गया है, और उसको सब्सटेंटिव प्रोविजन की एक्ट की बैकिंग दे दी गई है। जो प्रोविजन अभी तक हमारे पास एक स्कीम के माध्यम से था उसको हमने बैकिंग दे दी है लॉ की। अप टू 30th डे ऑफ नवंबर कोई भी रेक्टिफिकेशन हम कर पाएंगे रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। तो ये एक बड़ा वेलकम चेंज है कि एक्सटेंडेड टाइम अप टू 30th डे ऑफ नवंबर फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल। तो GSTR इससे इंडिकेशन आता है कि GSTR 3B के रेक्टिफिकेशन की प्रोविजन सरकार लेकर के आ रही है कि GSTR 3B को भी रेक्टिफाई किया जा सकेगा। और ये कंडीशन अब लगा दी गई है कि GSTR 1 जो है किसी भी टैक्स पीरियड का GSTR 3B से पहले फाइल होना पड़ेगा। अभी तक बहुत वेरी इनिशियल स्टेज में जब GSTR 1 का स्कीमा तैयार नहीं हुआ था, GSTR 3B से राजेश जी टैक्स पे करना शुरू कर दिया गया था। तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी कि GSTR 1 पहले फाइल होगी और 3B। और हालांकि बाद में ये देखा गया कि बाद में इसमें बहुत एरर्स लोगों की निकली, तो अब वो कंडीशन लगा दी गई है लॉ में कि अगर आपकी से सपोज अभी हम फरवरी 2022 की रिटर्न फाइल करना चाहेंगे और ये लॉ इन प्लेस है, हम ऐसा मान लें, तो फरवरी 2022 की GSTR 1 अगर फाइल नहीं की है तो उसकी 3B फाइल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके का ये प्रोविजन है, और इसमें ये बड़ी बेनिफिट है एसएससी को कि 1 फाइल करने के बाद आपके पास आउटपुट डिटेल जो फर्निश की है वो है, तो वही डिटेल फिर 3B में फर्निश करें, एरर ना करें, कम से कम उससे कम टैक्स पे ना करें। ITC रिवर्सल, ITC अवेलमेंट, ITC रिवर्सल, ITC रिक्लेम, इसके ऊपर सेक्शन 41, 42, 43, 43A इसमें एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स थे। अब उन्होंने इसको सेक्शन 41 में सारा सम अप कर दिया है, और सेक्शन 41 में अब इन्होंने ये कहा है कि प्रोविजनल बेसिस पर आप अवेल कर रहे हैं ITC, और अगर वो ITC आपका प्रोविजनल बेसिस पे कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस में परमिसिबल नहीं आता, तो फिर वो ITC अगर अवेल कर लिया गया है तो उसको विद इंटरेस्ट रिवर्स कर दिया जाए। लेकिन ये फैसिलिटी इसमें देखी गई है कि सप्लायर जब भी कभी उसका टैक्स पे कर देगा तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो से सपोज आपको एक प्रोविजनल बेसिस पे एक टैक्स अलाउ हुआ 2B में और वो आपने क्लेम कर लिया, लेकिन फिर अगले महीने सप्लायर ने प्रीवियस मंथ की रिटर्न फाइल नहीं की 3B, तो वो आपको इंडिकेशन आ जाएगा कि इसका टैक्स पे नहीं हुआ है, आप इसको रिवर्स कीजिए। तो उस ITC को आपने रिवर्स कर देना है और उसका इंटरेस्ट पे कर देना है, सप्लायर के साथ में फॉलो अप करना है, और सप्लायर जब ये टैक्स पे कर देगा तो देन उसको रिक्लेम कर सकते हैं। राजेश भाई, इस प्रोविजन का जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जी, जितने भी केसेस में नोटिस हैं अलिस्ड बोगस परचेजेस से, जहां पर ये रिसिपिएंट से टैक्स डिपॉजिट करा रहे हैं विदाउट इशूइंग शोकाज नोटिस और आफ्टर इशूइंग शोकाज नोटिस, वो सारे के सारे टैक्स को रिवर्सल ऑफ ITC करके 3B के माध्यम से आप पे करें। मेरा ऐसा सजेशन है इस सेक्शन के आने के बाद। और
डाउन द लाइन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी कभी सप्लायर ऑफ दोज इनवॉइसेस, जब भी कभी जितना भी टैक्स पे कर देता है, कम से कम उतने का रिलीफ इस प्रोविजन के माध्यम से मिल जाएगा। मैं अपने सभी असेसीज को ये कहता हूं कि जहां पर भी अलिस्ड परचेजेस का कहीं पर भी वो आपके पास नोटिस आता है किसी भी क्लाइंट के पास, तो केवल हरिडली जाकर के विदाउट सीइंग द फैक्ट ऑफ द कंप्लीट केस जाकर के DRC 03 के थ्रू वॉलंटरीली कंप्लायंस करके टैक्स ना पे करें। उससे क्या होगा कि आप कभी भी उस केस को आगे प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर आप लिटिगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप GSTR 3B के माध्यम से ITC रिवर्सल करके उसका टैक्स पे करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दिस हैज बीन अलिज्ड टू बी रॉन्गली क्लेम, तो अगर उसको ITC रिवर्सल करके टैक्स पे करेंगे या अंडर प्रोटेस्ट करेंगे, तब आपको उसको रीअवेल करने की फैसिलिटी हमेशा रहेगी। और ये लॉफुली प्रोविजन है, आ गया है। इसको मैं पहले भी एडवोकेट करता रहा हूं और अभी भी, अब तो ये प्रोविजन ही आ गया है, तो ये बड़ा बेनिफिशियल प्रोविजन है, इसको भी हमें वेलकम करना चाहिए। सेक्शन 42, सेक्शन 43 एंड 43A रिवर्सल, मैचिंग एंड रिक्लेम से रिलेटेड थे। अब क्योंकि इन्होंने 41 में इसको कंप्लीट दे दिया है, तो इन तीनों प्रोविजंस को ओमिट कर दिया गया है। तो जहां जहां भी लॉ में इनके रेफरेंसेस हैं, उनको भी वहां से ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 47 में वेरियस रिटर्न्स के लिए लेट फी प्रेस्क्राइब्ड है, जैसा कि हम जानते हैं। GSTR 1 के लिए, GSTR 3B के लिए, GSTR 9 के लिए, GSTR 10 के लिए। लेकिन एक रिटर्न होती है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की रिटर्न, सेक्शन 52 के अंडर। वो रिटर्न है GSTR 8। उसकी लेट फाइलिंग पे अभी तक कोई लेट फीस प्रेस्क्राइब्ड नहीं थी, तो अब उसको भी सेक्शन 47 के अंडर में ले आए हैं, और उसके लिए भी 100 रुपीज पर डे की डिले रिटर्न की लेट फीस को प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो 5 रिटर्न्स हैं जिसको कि सेक्शन 47 के अंदर लेट फी के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। GSTR 1, 3B, 8, 9 एंड GSTR 10, दैट इज फाइनल रिटर्न। GST प्रैक्टिशनर्स, जितनी भी हमारी रिटर्न्स हैं किसी भी एसएससी की, किसी भी डीलर की, अगर वो किसी भी GST प्रैक्टिशनर, अप्रूव्ड GST प्रैक्टिशनर्स को अथॉरिटी देते हैं, एम्पावर करते हैं, तो उनके सिग्नेचर से फाइल हो सकती हैं। तो लेकिन क्योंकि सेक्शन 38 ओमिट कर दिया गया और इनवर्ट सप्लाईज की रिटर्न अब फाइल करने की, GSTR 2 फाइल करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं रही है, तो उसका रेफरेंस भी ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट से रिलेटेड है। कई सारी रिस्ट्रिक्शंस इस सेक्शन में पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं। अभी कुछ कंडीशंस भी प्रेस्क्राइब्ड हैं और कुछ और रिस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं, उसकी पावर सरकार को दे दी गई है, GST एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई। लेकिन एक वेलकम चेंज भी किया है उन्होंने। अभी तक जो भी कैश लेजर में पैसा पड़ा होता था, वो सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर CGST से IGST में या इंटरेस्ट का लेट फी में, इंटरेस्ट का पेनल्टी में वो ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन अब ये पावर दे दी गई है कि CGST और IGST में जो भी कैश लेजर में पैसा पड़ा है, वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन, दूसरी स्टेट में कोई और रजिस्ट्रेशन है या सेम स्टेट में एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन है, उसको भी वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ये फैसिलिटी अभी पहले नहीं थी, अब इसको ले आया गया है। लेकिन ये पैसा तभी ट्रांसफर होगा राजेश भाई, जब उस असेसी के इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कोई भी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर कोई भी लायबिलिटी किसी भी असेसमेंट अथॉरिटी ने वहां पर मार्क कर रखी है, उसके लिए DRC 07 इशू किया हुआ है और लायबिलिटी लगाई हुई है, तो कोई भी अनपेड लायबिलिटी अगर वहां पर है, कई बार हमने देखा ये गया है कि लायबिलिटीज मार्क वहां पर आ जाती हैं, शुरू में आती नहीं थी, असेसिंग ऑफिसर्स भी उतने एजुकेटेड नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कोई भी डिमांड को अपलोड नहीं करते थे। पर अब
जितने भी डिमांड्स हैं सबको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अपलोड करना है। और जब हम DRC 03 भरते हैं तो हमको ना केवल DRC 03 भर के टैक्स पे करना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में खड़ी हुई उस लायबिलिटी को भी हमें अप्रोप्रिएट करके वहां से खत्म करना। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमारी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएंगी, और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हम किसी डिस्टिंक्ट पर्सन्स को भी इन द टावर्स ऑफ नीड ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया कि सबसेक्शन 12 इंसर्ट हुआ है सेक्शन 49 में, जो प्रेस्क्राइब करेगा कि इनपुट टैक्स से हम कितना, क्रेडिट लेजर से कितना हम आउटपुट टैक्स पे कर सकते हैं। अभी तक हमको रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड कोई भी ITC है उसके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी, लेकिन अब ये वेलकम चेंज आ गया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में कि अब रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड होगा तभी हमारे को इंटरेस्ट पे करना है। तो दैट मीन्स कि अगर हमने कोई ITC रोंगली अवेल कर लिया है और उसको अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी एसएससी के ऊपर नहीं है अब। तो इससे बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं, घबराएं नहीं। कहीं भी कोई एलिगेशन आता है बोगस परचेजेस का, और आप अगर उस बोगस परचेजेस के ITC को हमने अवेल नहीं किया है तो फिर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्रेडिट लेजर में खड़ा है तो इसको हम कोरिलेट करेंगे प्रीवियस वाले प्रोविजन से जो हमने बताया था, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे सेक्शन 41 के साथ में। इस सेक्शन को जब पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। उस ITC को रिवर्स कर दीजिए, इंटरेस्ट कोई पे नहीं करना है, और जब कभी सप्लायर उसको ड्यूली डिस्चार्ज कर देता है ऑब्लिगेशन को तो इसको यूटिलाइज कर लें। तो इन दोनों को सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 41 बड़ा बेनिफिशियल प्रोविजन है। अगर हम इसको अपने असेसिस को ठीक से एजुकेट करके और वहां पर इसको अप्लाई कराएंगे तो एक तो इंटरेस्ट से बच जाएंगे, दूसरा जो अलिस्ड बोगस परचेजेस या जिसको सप्लायर ने वैसे ही पे नहीं किया है या कहीं रॉन्ग क्रेडिट ले लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बच जाएंगे। कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो अब हम 30th डे ऑफ नवंबर तक कर सकते हैं। ये पहले भी तो ये जितनी भी हमारी TDS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की रिटर्न्स है उसके लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। रिफंड ऑफ टैक्स के लिए कुछ कंडीशंस इवन कैश लेजर्स के लिए कोई फॉर्म एंड मैनर को प्रेस्क्राइब करने की पावर दी गई है सरकार को। UN एजेंसीज को रिफंड के लिए 6 महीने का टाइम होता था पहले, अब उसको एक्सटेंड करके UN एजेंसी या जो इस तरीके के और दूसरी एजेंसीज और एंटिटीज हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेने के लिए पहले 6 महीने का टाइम होता था, अब उसको एक्सटेंड करके 2 इयर्स का टाइम कर दिया गया है। पहले जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड था उसको छोड़ के बाकी के रिफंड्स के लिए वाइड पावर थी। अब सारे रिफंड्स के लिए उसको होल्ड करने के लिए वाइड पावर्स दे दी गई हैं सेक्शन 54 में। प्लस पहले कोई रेफरेंस नहीं था स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर एंड यूनिट के लिए कि उनको रिफंड मिलेगा, लेकिन अब उसका क्लैरिटी दे दी गई है कि उनको जो सप्लाईज होंगी उसके ऊपर भी रिफंड मिलेगा। हालांकि ये टेक्निकल इन नेचर है, ऑलरेडी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट यस फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इस प्रोविजन को फर्निश किया, इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 168(2) में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट की गई है और रेफरेंस सेक्शन 38 का ओमिट कर दिया गया है वहां से। GSTN को ऑफिशियल पोर्टल बनाने के लिए नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया गया था, इसमें अब नोटिफिकेशन को अमेंड करके इसको ऑफिशियल पोर्टल बना दिया गया है। अभी तक हमारे को रोंगली अवेल्ड क्रेडिट के ऊपर 18% का 24% का इंटरेस्ट देने की बात थी, लेकिन अब
रोंगली अवेल्ड क्रेडिट को भी आउटपुट लाइबिलिटी के डिलेड के इंटरेस्ट के तौर पे 18% से ही इक्वल कर दिया गया है। तो अब अगर हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में डिले हो या रोंग अवेल क्रेडिट हो, दोनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। और जीएसटी में एक ये ब्यूटीफुल प्रोविजन है कि जो भी इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पे लगता है, मंथली बेसिस पे नहीं लगता है। अब हम कुछ और जीएसटी अपडेट ले लेते हैं जो 1 जनवरी 2022 से फाइनेंस एक्ट में आए थे पिछले फाइनेंस एक्ट में, लेकिन उनकी एप्लीकेबिलिटी जनवरी 1 2022 से हुई है। उसमें जो सबसे पहला और क्रिटिकल था वो जीएसटीआर 2B का ही एनफोर्समेंट था, लेकिन अब जीएसटीआर 2B का एनफोर्समेंट 1 जनवरी से तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन हो ही गया है, जो रूल 36(4) को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था पीछे। लेकिन अब सेक्शन 16(2) में भी इसकी बैकिंग आ गई है, तो अब राजेश जी ये पक्का हो गया है सो फार एज द लॉ मेकर इज कंसर्न। हाँ, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या इसका टेक्निकल लैप्सिस का खामियाजा सब्सटेंटिव बेनिफिट को ना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ये डिसाइड करना है। तो दिस वाज ए चेंज। 1 जनवरी से ही जीएसटीआर 2B की रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, पर अब उसको लॉ की बैकिंग दे दी गई है। ड्यू डेट जीएसटीआर 9 और 9C की फरवरी 28 है फाइल करने की 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो हम सब ध्यान रखें। और 15 फरवरी को टैक्स ऑडिट से फारिग होते ही इस काम के ऊपर भी लगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स रिटर्न और आरओसी रिटर्न्स के चक्कर में ये फॉर्म्स भूल जाएं कि 20-21 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए जीएसटीआर 9 और फॉर्म 9C ये फरवरी 28 तक है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार इसकी कोई डेट एक्सटेंड होने का कोई चांस है, तो इसको ध्यान में रखें। यूआईएन होल्डर्स को पहले एक बड़ी परेशानी थी कि उनको फिजिकल कॉपी सबमिशंस करने की बात थी सारे इनवॉइसेस की रिफंड क्लेम करने के लिए। तो अब उनको ये परमिट कर दिया गया है बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोवाइजो कि वो ऑथोराइज सिग्नेटरी के सर्टिफाइड कॉपीज को फर्निश कर सकते हैं इनवॉइसेस की, और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं जीएसटी आरएफडी फॉर्म 10 में। ये एक बड़ा क्रिटिकल चेंज आया है इन रिलेशन टू सेक्शन 129, जहां पर कि गुड्स डिटेन किए जाते हैं while in the course of transportation और storage in the course of transportation। जब भी कोई अनऑथराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ होती है, या स्टोरेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, वो अनऑथराइज्डली होती है, तो पहले ये प्रोविजन था कि पहले डिटेंशन होगी, डिटेंशन के लिए फिर आपको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा 7 दिन के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर फिर उसका ऑर्डर, आफ्टर द हियरिंग उसका ऑर्डर पास किया जाएगा अगले 7 दिन के अंदर। अगर पेनल्टी पे कर दी जाती है विद इन 15 डेज ऑफ द ऑर्डर, तो वो गुड्स रिलीज हो जाएंगे। अगर 15 डेज तक पेनल्टी में नहीं पेमेंट होती है तो वो कन्फेसिकेट हो जाएंगे, और फिर कन्फेसिकेशन के बाद फिर उसकी सेल का और दूसरे लीगल प्रोविजन चलेंगे। अब जो ये प्रोविजन कर दिया गया है राजेश भाई कि अब जो भी गुड्स डिटेन होंगे उसमें कन्फेसिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर पेनल्टी की डिमांड के 15 दिन के अंदर पेनल्टी पे नहीं होती है तो जीएसटी अथॉरिटीज को ये पावर दे दी गई है कि उन डिटेन्ड गुड्स को वो ऑक्शन कर सकते हैं। ऑक्शन में भी ये फिजिकल ऑक्शन और ऑक्शन में भी ये ई ऑक्शन, और उसके बाद अपना पेनल्टीज एंड अदर ड्यूज को रिकवर किया जा सकता है। तो अब कन्फेसिकेशन के मोड में जाने की उनको जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आफ्टर डिटेनिंग द गुड्स एंड इशूइंग द शोकॉज नोटिस एंड ऑर्डर ऑफ डिमांड ऑफ पेनल्टी, वो नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन 15 डेज के बाद इसका ऑक्शन कर सकते हैं गुड्स का।
प्रोविजनल अटैचमेंट, ये रूल 154 सब्स्टिट्यूट हुआ था एंड उसको अगर हम सेक्शन 83 के साथ में पढ़ते हैं तो ये एक बड़ा हार्श प्रोविजन पिछले लॉ में आया था, जिसको कि अब 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो अब जीएसटी कमिश्नर को ये पावर है कि वो प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक of a registered person, if he is of the opinion, if the commissioner is of the opinion that it is necessary to attach the same to protect the interest of the revenue। तो किसी भी व्यक्ति की, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी को इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट जीएसटी कमिश्नर प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। और जो भी वो अटैचमेंट्स हैं वो प्रेजेंटली अभी नॉन फाइलर्स के केस में होती थी, अनरजिस्टर्ड पर्संस के असेसमेंट के केस में होती थी, समरी असेसमेंट के केस में होती थी, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर्स के केस में होती थी, और सेक्शन 74 73 में अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें होती थी। अब कमिश्नर के पास कोई और भी इशू आता है, कोई और भी मैटर आता है, उस केसेस में भी वो उसमें प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस को बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रोविजनल अटैचमेंट, इसको इसलिए समझने की जरूरत है कि प्रीवियस लॉज में भी ये प्रोविजंस थे पर उसकी एप्लीकेशन कम होती थी, लेकिन बट नाउ जीएसटी लॉ में इसको इसकी एप्लीकेशन बहुत हो रही है। तो प्रोविजनल अटैचमेंट से हमें बच के चलना है। तो दीज वर द लेटेस्ट चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स। तो हम कुछ अब राजेश जी क्रिटिकल केस लॉज कर लेते हैं। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी सर। एक बड़ा वेलकम रूलिंग आई है सर, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की, आदित्य एनर्जी होल्डिंग वर्सेस डीजीजीआई। और उन्होंने कहा है कि सेक्शन 73 और 74 के प्रोसीडिंग्स के दौरान में या किसी भी और प्रोसीडिंग के दौरान में कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, that shall be treated as a tax paid under protest, even if DRC 03 के थ्रू आपने पेमेंट करी है, even then that shall be treated as a tax paid under protest, जब तक की प्रोसीडिंग्स सेक्शन 73 या 74 में फाइनलाइज नहीं हो जाती। तो राजेश भाई, जो असेसिंग ऑफिसर्स जी सर, इम्प्रेस अपॉन करके, उन थोड़ा सा इंटिमिडेट करके, परसुएशन करके टैक्स जमा करा लेते हैं, और असेसी को उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं होंगी वो पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ दिस कोर्ट रूलिंग माना जाएगा। और अगर प्रोसीडिंग्स आप केस को लिटिगेशन को जारी रखें और अगर केस आपके फेवर में डिसाइड होता है तो वो टैक्स आपको रिफंड क्लेम लेने के लिए आसानी होगी। तो अगर आपको लगता है, किसी भी एसएससी को ये लगता है कि नहीं हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, अभी मैंने एक बार टैक्स पे कर दिया गलती से लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था, और या मेरे पास वैलिड ग्राउंड है मैं केस को कंटेस्ट करूं, तो उसको अंडर प्रोटेस्ट माना जाएगा। एक्चुअली जीएसटी लॉ में, प्रीवियस सेंट्रल एक्साइज लॉ में और अदर लॉज में अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट की एक यूटिलिटी थी, एक प्रोविजन था, लेकिन जीएसटी लॉ में अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो उस प्रोविजन की कमी को ये ऑर्डर पूरा कर रहा है। तो जो भी आप पेमेंट करें वो अंडर प्रोटेस्ट मानी जाएगी और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अंडर प्रोटेस्ट का मतलब ये, एक बार वंस आपने पेमेंट कर दी तो आपका इंटरेस्ट का मीटर भी बंद हो जाएगा। एक बड़ा वेलकम है कि अगर कोई रीजनेबल कॉज की वजह से विद इन द टाइम ऑफ द ई वे बिल गुड्स डिलीवर नहीं हो पाते हैं और बाद में बीच में इंटरवीन होकर के डिटेन किए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में ई वे बिल एक्सपायर भी हो गया है लेकिन उसका कॉज है कि वो किसी रीजनेबल कॉज की वजह से उसकी डिलीवरी इन टाइम नहीं हो पाई, तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी नहीं लग सकती।
तो ये केस आया राजेश भाई जब कोर्ट के सामने, तो उसमें कॉज ये था, रीजनेबल कॉज, की देयर वाज ए ट्रैफिक ब्लॉकेज और उसकी वजह से टाइम से डिलीवरी नहीं हो पाई। तो फर्स्ट उसमें 10,000 रुपए की कॉस्ट इंपोज करी हाई कोर्ट ने, अच्छा जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे उनके बाद उन्होंने फिर दोबारा से अपील करी और फिर इस बार उन्होंने जितना अमाउंट और पेनल्टी था उतने ही पूरे अमाउंट की कॉस्ट उनके ऊपर इंपोज कर दी है, जस्ट टू लेट देम नो कि भाई इस तरीके से आप असेसीज को हरासमेंट नहीं कर सकते हैं व्हेन देयर इज ए रीजनेबल कॉज। तो अगर ईवे बिल की डेट एक्सपायर भी हो गई है तब भी उसको आपको हियर करना पड़ेगा और उसके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती। बीच में एक प्रोविजन आया था सर, जब रूल 97A इंसर्ट हुआ था फॉर मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एनी फॉर्म और एप्लीकेशन, जब तक कि आपका ऑनलाइन सिस्टम अपग्रेड नहीं हो जाता या जब वो ऑनलाइन सिस्टम्स अपग्रेड नहीं थे सब फॉर्म्स के लिए, तो रिफंड के लिए भी था। वो रूल अभी तक भी एप्लीकेबल है, अभी तक भी एग्जिस्ट करता है रूल 97A। तो जहां पर ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई है और असेसी मैनुअल रिटर्न एप्लीकेशन रिफंड एप्लीकेशंस फाइल कर रहा है, तो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मैनुअल रिफंड एप्लीकेशंस को आपको एडजुडिकेट करना पड़ेगा और उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड दैट दोज रिफंड एप्लीकेशंस आर वैलिड और उसके ऊपर प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशंस के लिए आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। ये क्वेस्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग का ये केस है। उसमें ये कहा गया कि डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड दिया लिमिटेशंस के लिए कोविड के समय में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो पिटीशन लेते हुए जितना भी कोविड का पीरियड है उस पीरियड को लिमिटेशन पीरियड से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने कि जो भी वो पीरियड है वो पीरियड रिफंड एप्लीकेशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा और उसकी वजह से रिफंड एप्लीकेशंस अगर टाइम बार हो भी रही है तो उसमें से वो पीरियड एक्सक्लूड कर दें और 2 साल का जो पीरियड है रिफंड एप्लीकेशन के लिए, जो कोविड पीरियड में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से पीरियड एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड करके फिर रिमेनिंग पीरियड के ऊपर बेसिस पे रिफंड एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने इस क्वेस्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज के केस में ऑर्डर दिया है। तो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और राजेश भाई मैं जिस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा हूं, जितने भी लिटिगेशन मैटर हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वेदर जीएसटी में उसके लिए कोई रिलैक्सेशन आए या ना आए, जहां पर भी लिटिगेशन के मैटर हैं, जहां पर भी क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अक्रॉस द इंडिया एप्लीकेबल है और अक्रॉस द ऑल लॉज एप्लीकेबल है, चाहे वो स्पेशल लॉ हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, उस ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑर्डर 15 मार्च 2020 से लेकर के और 10 फरवरी 2022 तक का पीरियड लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूडेड है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वेरियस ऑर्डर्स आए हैं 23 मार्च 2020 से लेकर के और उसके बाद 10 फरवरी 2022 तक के वेरियस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। जब भी किसी व्यक्ति का कोई केस इस तरीके से फॉल हो लिमिटेशन पीरियड में, डेफिनेटली उसको देख ले, बट ये भी ध्यान रखें कि जिस तरीके से ये फेवर करेगा असेसी को, ये डिसीजंस फेवर करेगा असेसिंग अथॉरिटीज को भी। तो ऐसा ना करें कि इंसिस्ट करें कि हमारा पीरियड लिमिटेशन से टाइम बार हो गया है। तो देख लें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर
और अपने केस को देख ले वेदर इट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग और नो। तो अगर एप्लीकेशंस के मैटर हैं, अपील के मैटर हैं, पिटिशंस के मैटर से रिलेटेड हैं या क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, तो दोनों तरफ का ये बेनिफिट इसमें मिलना चाहिए। तो ये मैटर है मनोज बंसल वर्सेस DGGI पंजाब एंड हरियाणा। उन्होंने कहा कि जहां पर एक्यूज्ड ने टैक्स जमा करा दिया, जो भी रिक्वायरमेंट जो भी डिपार्टमेंट ने उनको दी, वो कोर्ट के ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, वो उन्होंने जमा करा दी, तो उसके बाद वाई नॉट द बेल बी ग्रांटेड। और इस केस में 15 करोड़ रुपए का ये रोंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैटर था, बोगस बिलिंग का। तो उस केसेस में ये बेल दी गई है। इसके कंप्लीट डिटेल्स जिन लोगों के सिमिलर मैटर्स चल रहे हों वो देख सकते हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट का केस इन स्टार एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें ये कहा गया कि जब डिटेंशन ऑफ गुड्स हम कर रहे हैं सेक्शन 129 में और कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं सेक्शन 130 में, और उस समय में अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन असेसी देता है तो उसको कंसीडर करना जरूरी है। उसको कंसीडर किए बिना और उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किए बिना, उसको एडजुडिकेट किए बिना ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल जस्टिस कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना है किसी भी अथॉरिटी को। और इवन इफ द एलिगेशन इज ऑफ बोगस परचेजेस, तो जुडिशियल सिस्टम को एडहेयर करते हुए ये ऑर्डर दिया गया है। तो जहां पर भी अगर हम ये देखते हैं कि without giving a proper opportunity of being heard in the cases of section 129 and 130 detention and confiscation, तो जरूर कोर्ट ऐसे मैटर्स में असेसी के साथ खड़ा होगा और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह अगर कोई भी पार्टी देती है, दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ऐसा ये ऑर्डर पास किया गया बिकॉज दिस हैज बीन ट्रीटेड एज द म्युनिसिपल फंक्शन। एक मैन पावर सप्लाई इंडस्ट्री में राजेश भाई एक बड़ा इशू चलता है। यूजुअली जो मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर्स या सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो अपॉइंट होते हैं वो इस तरीके से अपॉइंट होते हैं कि उसमें जब उनका टेंडर वगैरह की बिडिंग होती है तो क्या सैलरी स्केल है उसके ऊपर 4% का मार्जिन, 5% का मार्जिन जो भी बीड है, और जो भी सैलरी है, ESI है, PF है, जितने भी इस तरीके के चीजें हैं वो सब भी उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं बाकायदा ट्रांसपेरेंटली, और वो कंप्लीट पेमेंट मैन पावर सप्लायर को दी जाती है कंपनी के द्वारा। तो यूजुअली मैन पावर सप्लायर्स, कुछ मैन पावर सप्लायर्स क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो लायबिलिटी है वो केवल उनके मार्जिन के ऊपर है, तो जबकि ऐसा नहीं है। और AAR वेस्ट बंगाल की ये रूलिंग है। उन्होंने कहा कि प्योर एजेंट के तौर पे मैन पावर सप्लायर काम नहीं कर रहा है, इवन इफ सैलरी और सारी डिटेल्स अलग से वर्कड आउट है। अगर सैलरी जो पर्सन्स है, मैन पावर जो है वो अगर क्लाइंट के रोल पे नहीं है और वो मैन पावर सप्लायर के रोल पे ही है, देन दैट इज ए कंप्लीट सर्विस, और जो ग्रॉस वैल्यू होगी उसके ऊपर GST लगेगा, ना कि केवल मार्जिन के ऊपर लगेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा जजमेंट है। जितने भी लोग ये सिक्योरिटी सर्विसेज और मैन पावर सर्विसेज, मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज, मैन पावर सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि प्योर एजेंट आप तभी बनते हैं जब मैन पावर जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्लाइंट के रोल के ऊपर हो, आपके रोल पे ना हो। अगेन ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में है, और इसमें भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी SSC की सबमिशंस हैं उसको हियर होकर के ही प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या कैंसिलेशन एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कई मैटर में राजेश भाई ये देखा गया है जी सर। कि डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया जाता है विदाउट इशूइंग शोकाज नोटिस इन DRC 01 और DRC 01A में स्टेटमेंट फर्निश किए बिना। तो मद्रास हाई कोर्ट ने श्री टायर्स वर्सेस स्टेट और टैक्स ऑफिसर बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दिया है कि जहां पर भी DRC 01 एक शोकाज नोटिस है इंटीमेट, और DRC 01A एक इंटीमेशन है, तो जहां पर भी ये दोनों डॉक्यूमेंट दिए बिना DRC 07 या कोई भी और ऑर्डर इशू किया जाता है डिमांड का, वो सही नहीं है और वो प्रोसीडिंग वाइड एब इनिशियो होगी, और ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है। ये वाउचर्स के ऊपर केस है कर्नाटका प्रीमियर सेल्स प्रमोशन का, और इसमें कहा गया कि जब तक वाउचर्स को कैश के तौर पे, इसमें केस ये था राजेश भाई कि वाउचर्स दिए गए और वाउचर्स या तो गुड्स के अगेंस्ट में एनकैश किए जा सकते थे या फिर कैशबैक भी लिया जा सकता था। तो उन्होंने कहा जब तक कैशबैक नहीं हो जाता वाउचर्स विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल और उसके ऊपर टैक्स देना होगा। जब ये कैशबैक हो जाए देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज मनी, और फिर जो भी टैक्स पे किया हुआ है वो रिफंड क्लेम हो सकता है। दो क्वेश्चन भी आए हुए हैं सर। हाँ जी, देख लेते हैं सर। अभी मैं भी बस इंपॉर्टेंट जजमेंट देख रहा हूँ जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ये रिफंड एप्लीकेशंस काफी टाइम पेंडिंग रह जाती हैं लोगों की, तो ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है क्लियरली कि 6 वीक्स के अंडर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी की रिफंड एप्लीकेशन डिसाइड होनी चाहिए, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम। इसमें ये क्लैरिफिकेटरी AAR है कर्नाटका की कि जॉब वर्क सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर रजिस्टर्ड पर्सन आर टैक्सेबल एट 12% एंड नॉट एट 18%। डिपार्टमेंट इसमें 18% की टैक्स डिमांड कर रहा था, तो उन्होंने क्लियर कहा नहीं, इट इज टैक्सेबल एट 12%। ये एम्प्लॉयर कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू एम्प्लॉइज इन व्हीकल हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13% टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट बोर्न बाय हिम। तो ये जर्नल ये प्रोविजन ऑलरेडी 17(5) में है कि 13% से ज्यादा का अगर व्हीकल है तो उसका आईटीसी डिनाइड नहीं है। लेकिन यस, जहां पर दोनों लोग कॉस्ट बियर कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी, वहां पर फिर इसका क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, वहां पर पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। तेलंगाना हाई कोर्ट की एडवांस रूलिंग है, तेलंगाना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की हाई रूलिंग है। Business of transportation of passenger by deploying air conditioner buses as stage carriage is covered by entry so and so, and concessional rate of 5% of GST could be paid on this.
ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है। AAR मध्य प्रदेश दादाजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कहा गया वेयर एप्लीकेंट ए हॉस्पिटल प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, medicines, consumables, surgical, etc. used in course of providing healthcare services to the patient would be considered at composite supply of healthcare services. And where applicant provides healthcare services to patient, supply of medicines, consumables, etc. to patient is exempted from payment of tax in entry in terms of entry number so and so. तो कई सारे मॉडल हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं राजेश भाई। वो या तो सारी की सारी बिलिंग करते हैं मेडिसिन की, कंज्यूमेबल्स की, सर्जिकल की सेपरेटली, और पेशेंट को और उसके ऊपर चार्ज करते हैं जीएसटी। और जितनी भी सर्विसेज होती हैं डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ्स की, रूम्स की, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करते। और जहां पर वो जीएसटी चार्ज करते हैं वहां पर मेडिसिन वगैरह का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है वो भी ले लेते हैं। दूसरा मॉडल ये है कि जब वो सारा का सारा कंप्लीट एक पैकेज के तौर पे, कंपोजिट सप्लाई के तौर पे कर रहे हैं, तो वहां पर फिर उनको मेडिसिन के ऊपर अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में अभी हाई कोर्ट की रूलिंग से ही पता चलेगा या सुप्रीम कोर्ट से कि अल्टीमेटली ये कंपोजिट सप्लाई ट्रीट होगी या नहीं होगी। इसमें कुछ केसेस में नोटिस भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको इसको कंपोजिट सप्लाई कंपल्सरीली ट्रीट करना पड़ेगा। जो टैक्स आपने पे कर दिया सरकार को मेडिसिन के ऊपर, उसको तो वो कह रहे हैं एक्सेस टैक्स पेड है, इसको रिफंड क्लेम कर लो। और इसके ऊपर जो टैक्स आपको मेडिसिन के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था बिकॉज इट इज ए कंपोजिट एग्जाम्प्ट सप्लाई, तो उसको डिसअलाउंस करो। तो इस तरीके की किसी भी प्रोसीडिंग्स में दोनों मॉडल, मेरा ऐसा मानना है, दोनों मॉडल चल सकते हैं। अगर सेपरेट बिलिंग करके हमने उसमें ड्यू ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया है टुवर्ड्स जीएसटी लायबिलिटी और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो भी गलत नहीं है। और अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया मेडिसिन के ऊपर, कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जो भी हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं या स्टंट्स लगते हैं, और उसको कंपोजिट बिलिंग में हमने एग्जम्प्ट रखा है, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके के मॉडल इन माय व्यू हॉस्पिटल्स परस्यू कर सकते हैं, और ये रिवेन्यू न्यूट्रल है और इसमें कहीं भी एक्सचेकर को कोई भी लॉस नहीं है। सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट व्हेन अंडर डेवलपमेंट, ये भी एक टैक्सेबल सप्लाई है। और इसको हम ध्यान रखें, अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जहां फ्लैट बनते हैं वो ही केवल टैक्सेबल सप्लाई है। तो इस रूलिंग में कहा गया कि अगर हम केवल प्लॉटिंग कर रहे हैं और डेवलप्ड प्लॉट देने का ऑफर करके इंस्टॉलमेंट बेस या अदरवाइज सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये भी एक टैक्सेबल सप्लाई है। केवल फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट को डायरेक्ट रजिस्ट्री के माध्यम से जब बेचते हैं तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अदरवाइज दिस वुड आल्सो बी टैक्सेबल। So this was from my side, राजेश भाई। सर थैंक यू। मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन है, क्विकली ले लो सर, जरा शॉर्ट में ही ले लो। देवेंद्र खुराना जी का क्वेश्चन है, इफ क्रेडिट नोट pertains to previous year, GST paid invoice could not be issued before 30th November as recipient did not make payment, is there way to get refund of GST paid? सर अगर सप्लाई कंक्लूड हो गई है तो फिर जीएसटी का रिफंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि क्रेडिट नोट सप्लाई के रिटर्न के ऊपर ही देना था और सप्लाई वाज नॉट एक्चुअली मेड, तो डेफिनेटली आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स से सपोज आपके एसएससी ने 1 लाख रुपए की सप्लाई करी, वो 1 लाख रुपए की सप्लाई वापिस आ गई उसके पास, लेकिन वो ड्यू टाइम में क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बल्कि अभी एक रिसेंट जजमेंट में उन्होंने कहा कि जहां एक्सेस टैक्स पेड है उसके लिए 2 साल की टाइम लिमिट भी नहीं लगती, बिकॉज दैट एक्सेस टैक्स पेड इज शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। तो
इसका रिफंड क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट नोट किसी और वजह से है, सप्लाई एक्चुअल में हुई है लेकिन क्रेडिट नोट किसी और वजह से था, तो वो बाद में अब क्रेडिट नोट नहीं इशू किया जा सकता, और उसका रिफंड किस तरीके से मिल पाएगा ये भी एक बार देखने, फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करेगा। हितेंद्र ठक्कर जी का क्वेश्चन है, आई एम ट्रांसपोर्टर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज issuing invoice charging GST 12% and using base oil as fuel in vehicle, paying 18% GST on the same and taking credit for the same. GST department issued notice that you cannot use this base oil as fuel because your vehicle registered under Motor Vehicle Act as diesel vehicle. So you cannot use base oil in your vehicle. तो सर ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बेस ऑयल क्या होता है और ये डीजल से कैसे डिफरेंट है, और डीजल व्हीकल बेस ऑयल से कैसे चल जाएगा ये मुझे नहीं पता। अगर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह की अगर कहीं कोई बात कर रहे हैं आप, उस तरीके का कोई ऑयल है, तो ये बेसिकली कंज्यूमेबल की डेफिनेशन में आता है, और कंज्यूमेबल को यूज करने के लिए अगर कोई जीएसटी पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिलेगा। बट ये बेस ऑयल क्या डीजल का रिप्लेसमेंट है, और अगर ये डीजल का रिप्लेसमेंट है तो डेफिनेटली फिर इसके ऊपर क्रेडिट अंडर डिस्प्यूट है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स अगर आप मुझे देंगे तो मैं इसको आंसर प्रॉपरली कर पाऊंगा। सौरभ रेलन जी का क्वेश्चन है, सर कैन वी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दिल्ली ऑन चलान? हाँ, अगर हम विद इन द सेम पर्सन अगर हम कर रहे हैं, अगर हम विद इन द सेम रजिस्टर्ड पर्सन के प्रेमाइसिस पे कर रहे हैं तो चलान के ऊपर ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। कोई भी मूवमेंट होगी गुड्स की तो आइदर इनवॉइस के बेस पे होगी या चलान के बेस पे होगी। ये अनदर क्वेश्चन है, अनोनिमस अटेंडी है, वेदर जीएसटी डिपार्टमेंट मस्ट एक्सेप्ट क्रेडिट एडवाइस इशूड बाय बैंकर एज बैंकर इज नॉट प्रोवाइडिंग FIRC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सर नहीं, क्रेडिट एडवाइस से काम नहीं चलता, बैंकर्स से आपको EBRC लेनी ही पड़ेगी। EBRC के बिना एक्सपोर्ट के क्लेम बड़ा मुश्किल है। सो नो अदर क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज के डिस्कशन से कुछ लोगों को कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं manmohankhemka@gmail.com, या मेरे मोबाइल पे आप मुझे भेज सकते हैं या बात कर सकते हैं 9810064427। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद वेरी मच। Thank you very much, Shankar ji, for a wonderful deliberation on the subject. As you know, there was a short time, but you very well covered all the changes, proposals in budget, and took the very thing in illustrative way. I think all the members will understand this, all these things, and will be benefited with this. I thank you very much, and thanks all the attendee also. Thank you very much, sir. Thank you very much. So I take your permission to leave the meeting, sir. Please, sir. Please, sir.